کیا چاہیے؟ دعا کیجیے مجھے بھی کسی ایسی ہی حویلی کی دہلیز مل جائے۔ دہلیز تو مقدر والیوں کا نصیب ہوتی ہے، میری دعا کی کیا اوقات میں تو من جوم جوم تن جوم جوم من جوم جوم تن جوم ایسا کرنا ہے کہ اپنے لیے شاپنگ کرنا اور ساتھ میں گھر والوں کے لیے بھی کچھ لینا، انہیں اچھا لگے گا۔ کافی لوگی؟ ایکسکیوز می پلیز 2 coffees. Thank you. اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے محسن ماہی پر سختیاں شروع کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ نوکر جیسی سلوک کرتی ہے۔ محسن سکندر سے کہتی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ تم سے شادی کر لے، تمہاری بیوی بن کر رہے اور اپنے گھر والوں سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گی۔ سکندر محسن کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن محسن کوئی بھی بات نہیں مانتی۔ وہ اسے رومانہ کی بھی بتانے کا کوشش کرتا ہے لیکن اس پہ محسن کہتی ہے ایسی بے حیا لڑکی کو میں اپنا بہو نہیں بنا سکتی۔ دوسری طرف بابا صاحب فرحات سے کہتے ہیں فرحات تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو لیکن اس سے پہلے تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اور پھر بابا صاحب فرحات سے کہتے ہیں پیار میں کبھی بد دعا نہیں دی جاتی، چاہے جو بھی حالات ہو، بس اسے صرف دعا ہی دی جاتی ہے اور تم نے جس سے پیار کیا تم نے اس کو بد دعا دی۔ اس لیے فرحات کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے ماہی کو بد دعا دے کر غلط کیا تھا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی بد دعا واپس لیتا ہوں۔ دوسری طرف ماہی کمرے میں اکیلی بیٹی رو رہی ہوتی ہے۔ سکندر اس کے پاس جا کر کہتا ہے اما سے سکندر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ ابھی بھی ان کے غم میں ہے، اس لیے وہ اب سے اس لہجے میں بات کرتی ہے۔ آپ کو اما سے کی باتوں پر برا نہیں ماننا چاہیے۔ اس پہ ماہی کہتی ہے آپ اما سے کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ اگر انہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے بھی تو اپنا شوہر کھویا ہے، اس گھر پر میرا بھی حق ہے۔ اما سے بار بار مجھے ایسی باتیں کیوں سناتی ہے؟ سکندر کہتا ہے میں اما سے کو سمجھاؤں گا، بس آپ کچھ ہی دن اسے برداشت کرے۔ دوسری طرف بابا صاحب فرحات سے کہتا ہے دنیا کی محبت عارضی محبت ہے، دنیا کی محبت انسان کو دنیا کا ہی بنا کر رکھتی ہے، حقیقی محبت میں دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی، اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں دل کا روگ انسان کو صرف در بدر کے ٹوکرے ہی دیتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ فرحات حیران ہو کے فقیر بابا کی طرف دیکھتا ہے بابا آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ جب بھی میں آنکھیں بند کرتی ہوں میرا محبوب میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، میں بھولنے کی لاکھ کوشش کر چکا ہوں لیکن اس کا چہرہ میری آنکھوں سے اجل ہی نہیں ہوتا۔ فقیر بابا فرحات کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف جب نوری کو پتہ چلتا ہے کہ فرحات زندہ ہے، حویلی آ کر ناظم شاہ کو بتاتا ہے آپ کو پتا ہے فرحات زندہ ہے۔ اس پہ ناظم شاہ کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمام نشانیاں فرحات کی تھی، فرحات تو مر چکا ہے نا۔ اس پہ نورا کہتا ہے فرحات ملتان میں ایک درگاہ پر دیکھا گیا ہے، میں نے اس بات کی پوری تصدیق کیا ہے فرحات زندہ ہے۔ اس پہ ناظم شاہ کہتا ہے تم فوراً اپنے بندوں کو لے کر جاؤ اور فرحات کو یہاں لے کر آؤ۔ اس پہ نورا کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے کہتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فرحات واپس آئے گا۔ اس پہ ناظم شاہ کہتا ہے وہ کیوں نہیں آئے گا، تم جلدی سے جا کر اسے اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ اور پھر نورا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب سے نوری کو پتا چلا ہے کہ فرحات زندہ ہے اس بات پر نورا بھی بہت زیادہ خوش ہے، اس لیے وہ دلاوری کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور اسے یہی بتانا چاہتا ہے کہ فرحات زندہ ہے۔ دوسری طرف محسن ماہی کے ساتھ اسی درگاہ میں جاتی ہے۔ ماہی فرحات کو دیکھ کر اسے یقین نہیں آتا کہ فرحات زندہ ہے۔ ماہی فرحات کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے پلیز آپ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائے، میں تمہیں ایسی اذیت میں نہیں دیکھ سکتی، محبت میں ضد نہیں ہوتی، ضد تو محبت کی دشمن ہے۔ فرحات یہ سن کر ماہی سے کہتا ہے ماہی میں کہاں جاؤں مجھے تو کچھ یاد نہیں، اگر یاد ہے تو صرف تمہارا نام، اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس پہ ماہی کہتی ہے فرحات تمہاری بد دعا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میں خود اذیت میں ہوں، میں مزید تمہیں ایسی اذیت میں نہیں دیکھ سکتی۔ دوسری طرف نورا آخر کار فرحات کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے۔ نورا فرحات کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ نوری کو یقین نہیں آتا کہ فرحات اس حالت کو پہنچ چکا ہے۔ نورا فرحات کے پاس آ کر کہتا ہے فرحات تم کہاں چلے گئے تھے، ہم نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، آخر تم واپس کیوں نہیں آئے؟ نوری کی بات سن کر فرحات وہاں سے جانے لگتا ہے۔ فرحات ایسا ریئیکٹ کرتا ہے جیسے پہلے اس نے نوری کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس پہ نورا فرحات سے کہتا ہے بہو فرحات تم مجھے نہیں پہچان رہے؟ فرحات اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میں آپ کو نہیں جانتا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں، میں نورا ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم مجھے بھی نہیں پہچانتے، تو مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ فرحات ایک دفعہ پھر اسے کہتا ہے میں آپ کو نہیں جانتا اور پھر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ فرحات جس کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا، وہ صرف اور صرف اپنی محبوب کے سوا کسی کو بھی پہچانتا نہیں۔ دوسری طرف سکندر رومانہ کے پاس جاتا ہے۔ رومانہ کو پریشان دیکھ کر سکندر کہتا ہے آخر تمہیں وہ کیا جاتا ہے؟ اس پہ رومانہ کہتی ہے میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی، میں نے تمہارے خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ سکندر کہتا ہے میں نے ایسا کیا کیا ہے، میں تو صرف تم سے محبت کرتا ہوں،
और बहुत जल्द तुम्हें हवेली ले जाऊंगा। इस पे रुमाना कहती है, मुझे नहीं लगता है कि तुम उस हवेली में मुझे वो इज्जत दिला पाओगे जो होना चाहिए। दूसरी तरफ सजाद दिलावर को फोन करके उसे बताता है, सजाद तुम्हें पता है फरहाद जिंदा है। सजाद ये सुनकर उसकी खुशी कोई इंतहा नहीं होती और वो उसी वक्त मुल्तान आ जाता है। मुल्तान में उसे पता चल जाता है कि फरहाद एक दरबार में है। वो दरबार आकर फरहाद को ढूंढना शुरू कर देता है और सजाद जैसे ही फरहाद को दरगाह में देखता है वो फौरन फरहाद के पास आकर कहता है, पीदी तुमने अपने आप का क्या हाल बना दिया है। पीदी तुम कहाँ गई थी, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम्हारा कोई खबर नहीं। सब घर वाले तुम्हारे लिए परेशान हैं और अम्मी भी होश में नहीं है। तुम अभी के भी मेरे साथ वापस घर चलो। फरहाद बहुत गौर से सजाद की तरफ देखता है और पहचानने से भी इनकार कर देता है। तुम कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। इसमें सजाद कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ सजाद, आप पहचानने से कैसे इनकार कर सकती हो। फरहाद ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम अभी के भी मेरे साथ वापस घर चलो। आखिर तुमने अपना हाल क्या बना रखा है, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। फरहाद कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आपको नहीं जानता और फिर वहाँ से जाने लगता है। इसलिए सजाद भी बहुत परेशान है कि अब वो फरहाद को यहाँ से कैसे लेकर जाए। दूसरी तरफ फकीरा और माही दोनों दरगाह पर जाती है। फकीरा माही से कहती है, फरहाद तो मर चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वेहम है। इस पे माही कहती है, नहीं ये मेरा वेहम नहीं है, मैंने खुद उसे देखा है, फरहाद जिंदा है। ये सुनकर फकीरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और माही जैसे ही फरहाद को देखती है तो उसके पास आकर कहती है, फरहाद मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें आज दिलाने वाली मैं थी और दूसरी का हाथ भी मैंने बढ़ाया था। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगती है और फिर फरहाद माही से कहता है, इसी नाजुक दिल ले लोगा, सड्डा दिल ना यूं दुखाया कर, ना झूठी वादी करिया कर, ना झूठी कसमिया खाया कर, तेनों किन्नी वारी आ किया है, मैनू वलवल ना आजमाया कर, तेरी याद दे विच मैं मर जासा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। और माही फिर से फरहाद के आगे हाथ जोड़ लेती है, प्लीज फरहाद आप मुझे माफ कर दो, क्योंकि जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी से गए हो उस दिन से लेकर आज तक मैं एक एक लम्हा तुम्हारी याद में तड़पती रही हूँ। फरहाद के पास तो कुछ अल्फाज ही नहीं होती और उसके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि वो किस कदर सच्ची मोहब्बत माही से करता था, लेकिन माही ने उसकी मोहब्बत को चंद अल्फाज से टुकरा के रख दिया और उसकी मोहब्बत की जरा भी कदर नहीं की। उसके जज्बात किस कदर सच्ची थी। माही के जाने का वक्त हो जाता है, भाभी उसे लेकर चली जाती है और फरहाद भी इसी आस में है कि माही दोबारा आएगी और माही भी दोबारा मिलना चाहती है फरहाद से, क्योंकि माही को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक फरहाद उसे माफ नहीं करेगा। माही ये सब कुछ जान जाती है कि किस तरह नाजिर शाह फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है और यही बात माही से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि वो अब दोबारा फरहाद को खोना नहीं चाहती। माही को इस बात का एहसास है कि फरहाद को पहली दफा खोने के बाद उसने किस तरह की अजियतें सही, इसलिए वो अपने वालिदा से कहती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ लेती हूँ, आप भाई को समझा दे कि वो फरहाद को माफ कर दे। अगर फरहाद को इस दफा कुछ हो गया मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। और ये बात सच है कि फरहाद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और इस मोहब्बत की आस मैंने खुद उसे दिलाई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि फरहाद मेरी मोहब्बत में यहाँ तक आ जाएगा। इस पे माही की वालिदा कहती है, माही तुम फरहाद को भूल क्यों नहीं जाती, हालांकि तुम जानती भी हो उसकी बददुआ की वजह से तुम्हारी जिंदगी से खुशियों का खात्मा हो गया, फिर भी तुम फरहाद की जिंदगी के लिए दुआ कर रही हो। तुम अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हो, उसको जब एक दफा गुस्सा आता है फिर कम होने का नाम नहीं लेता। वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। रुमाना सिकंदर से कहती है, फरहाद दीवानों की तरह माही को चाहता है, वो उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर हमने फरहाद और माही की मदद ना की तो इसी तरह माही फरहाद की याद में तड़पती रहेगी। हमें इन दोनों के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस पे सिकंदर कहता है, फरहाद ने माही की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, मुझे यकीन नहीं आता वो पागलों की तरह माही से मोहब्बत करता है। उसने सिर्फ माही की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। वो माही थी जिसकी वजह से फरहाद ने अपनी ये हालत कर दी। दूसरी तरफ फरहाद जो आज भी माही की याद में तड़प रहा है, वो अभी तक माही को अपने दिल से नहीं निकाल पाया। आज भी वो माही की खातिर दर बदर भटक रहा है और उसे इस बात का यकीन है कि माही एक न एक दिन जरूर आएगी और एक न एक दिन उसे मेरी सच्ची मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। लेकिन फरहाद को भी पता नहीं कि वो जितनी मोहब्बत माही से करता है उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत माही फरहाद से करती है। और जब से माही को ये बात मालूम हुई है कि नाज़िर शाह फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो एक एक लम्हा फरहाद के लिए दुआ कर रही है, क्योंकि वो अब दोबारा फरहाद को खोना नहीं चाहती। और हमासे में माही की खुद मदद करेगी, लेकिन सिर्फ नाज़िर शाह से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ तक कि वो माही का भी दुश्मन बन चुका है। रुमाना को पता चलता है कि सिकंदर माही से शादी कर रहा है। सिकंदर से मिलने के लिए रुमाना आ जाती है। रुमाना कहती है, सिकंदर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ दिया। सिकंदर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे, इस हवेली में मुझे लाओगे,
तो इस पे सिकंदर कहता है माही से शादी सिर्फ मेरी मजबूरी है और ये बात सच है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बहुत जल्द मैं अपनी वादी पूरी करूंगा। दूसरी तरफ माही की वाला माही से कहती है अगर तुम सिकंदर से शादी नहीं करना चाहती हो तो ना करो, तुम्हारे भाई और बाप को मैं मनाऊंगी। इस पे माही रोने लगती है और कहती है अब उस घर में मैं वापस क्या करने के लिए जाऊंगी। इस पे माही की वाला कहती है माही तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी तुम्हारी खेलने के दिन है, तुम अपनी जिंदगी से मायूस कैसे हो सकते हो। इस पे माही कहती है नहीं अम्मी, मैं इसी घर में रहूंगी। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे मासेन माही पर सख्तियाँ शुरू कर देती है और उसके साथ नौकर जैसे सलूक करती है। मासेन सिकंदर से कहती है इसकी सजा ये है कि वो तुमसे शादी कर ले, तुम्हारी बीवी बनकर रहे और अपने घर वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं रखेगी। सिकंदर मासेन को लाख समझाने की कोशिश करता है लेकिन अब मासेन कोई भी बात नहीं मानती। वो उसे रोमाना की भी बताने का कोशिश करता है लेकिन इस पे मासेन कहती है ऐसी बेहया लड़की को मैं अपना बहू नहीं बना सकती। दूसरी तरफ बाबा साई फरहाद से कहते हैं फरहाद तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें अल्लाह को राजी करना होगा। और फिर बाबा साई फरहाद से कहते हैं यार में कभी बद्दुआ नहीं दी जाती, चाहे जो भी हालात हो, बस उसे सिर्फ दुआ ही दी जाती है और तुमने जिससे प्यार किया तुमने उसको बद्दुआ दी। इसलिए फरहाद को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने माही को बद्दुआ देकर गलत किया था। इसलिए वो अल्लाह ताला से माफी मांगता है और कहता है मैं अपनी बद्दुआ वापस लेता हूँ। दूसरी तरफ माही कमरे में अकेली बेटी रो रही होती है। सिकंदर उसके पास जाकर कहता है अम्मा से सिकंदर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, वो अभी भी उनके गम में है, इसलिए वो आपसे इस लहजे में बात करती है। आपको मासेन की बातों पर बुरा नहीं मानना चाहिए। इस पे माही कहती है आप मासेन को समझाती क्यों नहीं, अगर उन्होंने अपना बेटा खोया है मैंने भी तो अपना शौहर खोया है, इस घर पर मेरा भी हक है। मासेन बार बार मुझे ऐसी बातें क्यों सुनाती है। सिकंदर कहता है मैं मासेन को समझाऊंगा, बस आप कुछ ही दिन इसे बर्दाश्त करे। दूसरी तरफ बाबा साई फरहाद से कहता है दुनिया की मोहब्बत आर्जी मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत इंसान को दुनिया का ही बनाकर रखती है। हकीकी मोहब्बत में दुनिया भी मिल जाती है और आखिरत भी, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ दिल का रोग इंसान को सिर्फ दर बदर के टोकरे ही देता है, इसके सिवा कुछ नहीं। फरहाद हैरान हो कि फकीर बाबा की तरफ देखता है बाबा आप मुझे बताए मैं क्या करूँ, जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मेरा महबूब मेरी आंखों के सामने होता है। मैं भूलने की लाख कोशिश कर चुका हूँ लेकिन उसका चेहरा मेरी आंखों से उजल ही नहीं होता। फकीर बाबा फरहाद की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ जब नूरी को पता चलता है कि फरहाद जिंदा है, हवेली आकर नाजिम शाह को बताता है आपको पता है फरहाद जिंदा है। इस पे नाजिम शाह कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तमाम निशानियां फरहाद की थी, फरहाद तो मर चुका है ना। इस पे नूरा कहता है फरहाद मुल्तान में एक दरगाह पर देखा गया है, मैंने इस बात की पूरी तस्दीक किया है, फरहाद जिंदा है। इस पे नाजिम शाह कहता है तुम फौरन अपने बंदों को लेकर जाओ और फरहाद को यहाँ लेकर आओ। इस पे नूरा कहता है ठीक है आप जैसे कहता है मैं वैसा ही करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फरहाद वापस आएगा। इस पे नाजिम शाह कहता है वो क्यों नहीं आएगा, तुम जल्दी से जाकर उसे अपने साथ लेकर आओ। और फिर नूरा वहाँ से चला जाता है। जब से नूरे को पता चला है कि फरहाद जिंदा है, इस बात पर नूरा भी बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए वो दिलावरी को ढूंढना शुरू कर देता है और उसे यही बताना चाहता है कि फरहाद जिंदा है। दूसरी तरफ मासेन माही के साथ उसी दरगाह में जाती है। माही फरहाद को देखकर उसे यकीन नहीं आता कि फरहाद जिंदा है। माही फरहाद को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगती है, प्लीज आप खुदा के लिए यहाँ से चले जाए, मैं तुम्हें इसी अजियत में नहीं देख सकती। मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो मोहब्बत की दुश्मन है। फरहाद ये सुनकर माही से कहता है माही मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ याद नहीं, अगर याद है तो सिर्फ तुम्हारा नाम, इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं जानता। इस पे माही कहती है फरहाद तुम्हारी बद्दुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं खुद अजियत में हूँ, मैं मजीद तुम्हें ऐसी अजियत में नहीं देख सकती। दूसरी तरफ नूरा आखिरकार फरहाद के पास पहुंच ही जाता है। नूरा फरहाद को देखकर उसकी आंखें कुली की कुली रह जाती है। नूरी को यकीन नहीं आता कि फरहाद इस हालत को पहुंच चुका है। नूरा फरहाद के पास आकर कहता है फरहाद तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, आखिर तुम वापस क्यों नहीं आए। नूरी की बात सुनकर फरहाद वहाँ से जाने लगता है। फरहाद ऐसा रिएक्ट करता है जैसे पहले उसने नूरी को कभी देखा ही नहीं। इस पे नूरा फरहाद से कहता है बहू फरहाद तुम मुझे नहीं पहचान रहे। फरहाद उसकी तरफ देखकर कहता है मैं आपको नहीं जानता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, मैं नूरा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मुझे भी नहीं पहचानते, तुम मुझे कैसे भूल सकता है। फरहाद एक दफा फिर उसे कहता है मैं आपको नहीं जानता और फिर वहाँ से जाने लगता है। फरहाद जिसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी महबूब के सिवा किसी को भी पहचानता नहीं। दूसरी तरफ सिकंदर रोमाना के पास जाता है। रोमाना को परेशान देखकर सिकंदर कहता है आखिर तुम्हें वो किया जाता है। इस पे रोमाना कहती है मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ दिया, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। इस पे सिकंदर कहता है मैंने ऐसा क्या किया है, मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ।
और बहुत जल्द तुम्हें हवेली ले जाऊंगा। इस पे रुमाना कहती है, मुझे नहीं लगता है कि तुम उस हवेली में मुझे वो इज्जत दिला पाओगे जो होना चाहिए। दूसरी तरफ सजाद दिलावर को फोन करके उसे बताता है, सजाद तुम्हें पता है फरहाद जिंदा है। सजाद ये सुनकर उसकी खुशी कोई इंतहा नहीं होती और वो उसी वक्त मुल्तान आ जाता है। मुल्तान में उसे पता चल जाता है कि फरहाद एक दरबार में है। वो दरबार आकर फरहाद को ढूंढना शुरू कर देता है और सजाद जैसे ही फरहाद को दरगाह में देखता है वो फौरन फरहाद के पास आकर कहता है, पीदी तुमने अपने आप का क्या हाल बना दिया है। पीदी तुम कहाँ गई थी, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम्हारा कोई खबर नहीं। सब घर वाले तुम्हारे लिए परेशान हैं और अम्मी भी होश में नहीं है। तुम अभी के भी मेरे साथ वापस घर चलो। फरहाद बहुत गौर से सजाद की तरफ देखता है और पहचानने से भी इनकार कर देता है। तुम कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। इसमें सजाद कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ सजाद, आप पहचानने से कैसे इनकार कर सकती हो। फरहाद ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम अभी के भी मेरे साथ वापस घर चलो। आखिर तुमने अपना हाल क्या बना रखा है, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। फरहाद कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आपको नहीं जानता और फिर वहाँ से जाने लगता है। इसलिए सजाद भी बहुत परेशान है कि वो फरहाद को यहाँ से कैसे लेकर जाए। दूसरी तरफ फकीरा और माही दोनों दरगाह पर जाती है। फकीरा माही से कहती है, फरहाद तो मर चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वेहम है। इस पे माही कहती है, नहीं ये मेरा वेहम नहीं है, मैंने खुद उसे देखा है, फरहाद जिंदा है। ये सुनकर फकीरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और माही जैसे ही फरहाद को देखती है तो उसके पास आकर कहती है, फरहाद मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें आज दिलाने वाली मैं थी और दूसरी का हाथ भी मैंने बढ़ाया था। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगती है और फिर फरहाद माही से कहता है, इसी नाजुक दिल ले लोगा, सड्डा दिल ना यूं दुखाया कर, ना झूठी वादी करिया कर, ना झूठी कसमिया खाया कर, तेनों किन्नी वारी आ किया है, मैनू वलवल ना आजमाया कर, तेरी याद दे विच में मर जासा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। और माही फिर से फरहाद के आगे हाथ जोड़ लेती है, प्लीज फरहाद आप मुझे माफ कर दो, क्योंकि जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी से गए हो उस दिन से लेकर आज तक मैं एक एक लम्हा तुम्हारी याद में तड़पती रही हूँ। फरहाद के पास तो कुछ अल्फाज ही नहीं होती और उसके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि वो किस कदर सच्ची मोहब्बत माही से करता था, लेकिन माही ने उसकी मोहब्बत को चंद अल्फाज से टुकरा के रख दिया और उसकी मोहब्बत की जरा भी कदर नहीं की। उसके जज्बात किस कदर सच्ची थी। माही के जाने का वक्त हो जाता है, भाभी उसे लेकर चली जाती है और फरहाद भी इसी आस में है कि माही दोबारा आएगी और माही भी दोबारा मिलना चाहती है फरहाद से, क्योंकि माही को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक फरहाद उसे माफ नहीं करेगा। माही ये सब कुछ जान जाती है कि किस तरह नाजिर शाह फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है और यही बात माही से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि वो अब दोबारा फरहाद को खोना नहीं चाहती। माही को इस बात का एहसास है कि फरहाद को पहली दफा खोने के बाद उसने किस तरह की अजियतें सही, इसलिए वो अपने वालिदा से कहती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ लेती हूँ, आप भाई को समझा दे कि वो फरहाद को माफ कर दे। अगर फरहाद को इस दफा कुछ हो गया मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। और ये बात सच है कि फरहाद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और इस मोहब्बत की आस मैंने खुद उसे दिलाई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि फरहाद मेरी मोहब्बत में यहाँ तक आ जाएगा। इस पे माही की वालिदा कहती है, माही तुम फरहाद को भूल क्यों नहीं जाती, हालांकि तुम जानती भी हो उसकी बददुआ की वजह से तुम्हारी जिंदगी से खुशियों का खात्मा हो गया, फिर भी तुम फरहाद की जिंदगी के लिए दुआ कर रही हो। तुम अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हो, उसको जब एक दफा गुस्सा आता है फिर कम होने का नाम नहीं लेता। वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। रुमाना सिकंदर से कहती है, फरहाद दीवानों की तरह माही को चाहता है, वो उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर हमने फरहाद और माही की मदद ना की तो इसी तरह माही फरहाद की याद में तड़पती रहेगी। हमें इन दोनों के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसमें सिकंदर कहता है, फरहाद ने माही की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, मुझे यकीन नहीं आता वो पागलों की तरह माही से मोहब्बत करता है। उसने सिर्फ माही की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। वो माही थी जिसकी वजह से फरहाद ने अपनी ये हालत कर दी। दूसरी तरफ फरहाद जो आज भी माही की याद में तड़प रहा है, वो अभी तक माही को अपने दिल से नहीं निकाल पाया। आज भी वो माही की खातिर दर बदर भटक रहा है और उसे इस बात का यकीन है कि माही एक न एक दिन जरूर आएगी और एक न एक दिन उसे मेरी सच्ची मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। लेकिन फरहाद को भी पता नहीं कि वो जितनी मोहब्बत माही से करता है उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत माही फरहाद से करती है। और जब से माही को ये बात मालूम हुई है कि नाज़िर शाह फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो एक एक लम्हा फरहाद के लिए दुआ कर रही है, क्योंकि वो अब दोबारा फरहाद को खोना नहीं चाहती और हमासे में माही की खुद मदद करेगी। लेकिन सिर्फ नाज़िर शाह से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ तक कि वो माही का भी दुश्मन बन चुका है। रुमाना को पता चलता है कि सिकंदर माही से शादी कर रहा है। सिकंदर से मिलने के लिए रुमाना आ जाती है। रुमाना कहती है, सिकंदर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ दिया। सिकंदर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे, इस हवेली में मुझे लाओगे,
तो इस पे सिकंदर कहता है माही से शादी सिर्फ मेरी मजबूरी है और ये बात सच है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बहुत जल्द मैं अपने वादे पूरी करूंगा। दूसरी तरफ माही की वाला माही से कहती है अगर तुम सिकंदर से शादी नहीं करना चाहती हो तो ना करो, तुम्हारे भाई और बाप को मैं मनाऊंगी। इस पे माही रोने लगती है और कहती है अब उस घर में मैं वापस क्या करने के लिए जाऊंगी। इस पे माही की वाला कहती है माही तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी तुम्हारी खेलने के दिन है, तुम अपनी जिंदगी से मायूस कैसे हो सकते हो। इस पे माही कहती है नहीं अम्मी, मैं इसी घर में रहूंगी। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे मासेन माही पर सख्तियाँ शुरू कर देती है और उसके साथ नौकर जैसे सलूक करती है। मासेन सिकंदर से कहती है इसकी सजा ये है कि वो तुमसे शादी कर ले, तुम्हारी बीवी बनकर रहे और अपने घर वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं रखेगी। सिकंदर मासेन को लाख समझाने की कोशिश करता है लेकिन अब मासेन कोई भी बात नहीं मानती। वो उसे रोमाना की भी बताने का कोशिश करता है लेकिन इस पे मासेन कहती है ऐसी बेहया लड़की को मैं अपना बहू नहीं बना सकती। दूसरी तरफ बाबा साई फरहाद से कहते हैं फरहाद तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें अल्लाह को राजी करना होगा। और फिर बाबा साई फरहाद से कहते हैं प्यार में कभी बद्दुआ नहीं दी जाती, चाहे जो भी हालात हो, बस उसे सिर्फ दुआ ही दी जाती है और तुमने जिससे प्यार किया तुमने उसको बद्दुआ दी। इसलिए फरहाद को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने माही को बद्दुआ देकर गलत किया था। इसलिए वो अल्लाह ताला से माफी मांगता है और कहता है मैं अपनी बद्दुआ वापस लेता हूँ। दूसरी तरफ माही कमरे में अकेली बेटी रो रही होती है। सिकंदर उसके पास जाकर कहता है मासेन सिकंदर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, वो अभी भी उनके गम में है, इसलिए वो आपसे इस लहजे में बात करती है। आपको मासेन की बातों पर बुरा नहीं मानना चाहिए। इस पे माही कहती है आप मासेन को समझाती क्यों नहीं, अगर उन्होंने अपना बेटा खोया है मैंने भी तो अपना शौहर खोया है, इस घर पर मेरा भी हक है। मासेन बार बार मुझे ऐसी बातें क्यों सुनाती है। सिकंदर कहता है मैं मासेन को समझाऊंगा, बस आप कुछ ही दिन इसे बर्दाश्त करे। दूसरी तरफ बाबा साई फरहाद से कहता है दुनिया की मोहब्बत आर्जी मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत इंसान को दुनिया का ही बनाकर रखती है। हकीकी मोहब्बत में दुनिया भी मिल जाती है और आखिरत भी, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ दिल का रोग इंसान को सिर्फ दर बदर के टोकरे ही देता है, इसके सिवा कुछ नहीं। फरहाद हैरान हो कि फकीर बाबा की तरफ देखता है बाबा आप मुझे बताए मैं क्या करूँ, जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मेरा महबूब मेरी आंखों के सामने होता है। मैं भूलने की लाख कोशिश कर चुका हूँ लेकिन उसका चेहरा मेरी आंखों से उजल ही नहीं होता। फकीर बाबा फरहाद की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ जब नूरी को पता चलता है कि फरहाद जिंदा है, हवेली आकर नाजिम शाह को बताता है आपको पता है फरहाद जिंदा है। इस पे नाजिम शाह कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तमाम निशानियां फरहाद की थी, फरहाद तो मर चुका है ना। इस पे नूरा कहता है फरहाद मुल्तान में एक दरगाह पर देखा गया है, मैंने इस बात की पूरी तस्दीक किया है, फरहाद जिंदा है। इस पे नाजिम शाह कहता है तुम फौरन अपने बंदों को लेकर जाओ और फरहाद को यहाँ लेकर आओ। इस पे नूरा कहता है ठीक है आप जैसे कहता है मैं वैसा ही करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फरहाद वापस आएगा। इस पे नाजिम शाह कहता है वो क्यों नहीं आएगा, तुम जल्दी से जाकर उसे अपने साथ लेकर आओ। और फिर नूरा वहाँ से चला जाता है। जब से नूरी को पता चला है कि फरहाद जिंदा है, इस बात पर नूरा भी बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए वो दिलावरी को ढूंढना शुरू कर देता है और उसे यही बताना चाहता है कि फरहाद जिंदा है। दूसरी तरफ मासेन माही के साथ उसी दरगाह में जाती है। माही फरहाद को देखकर उसे यकीन नहीं आता कि फरहाद जिंदा है। माही फरहाद को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगती है, प्लीज आप खुदा के लिए यहाँ से चले जाए, मैं तुम्हें इसी अजियत में नहीं देख सकती। मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो मोहब्बत की दुश्मन है। फरहाद ये सुनकर माही से कहता है माही मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ याद नहीं, अगर याद है तो सिर्फ तुम्हारा नाम, इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं जानता। इस पे माही कहती है फरहाद तुम्हारी बद्दुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं खुद अजियत में हूँ, मैं मजीद तुम्हें ऐसी अजियत में नहीं देख सकती। दूसरी तरफ नूरा आखिरकार फरहाद के पास पहुंच ही जाता है। नूरा फरहाद को देखकर उसकी आंखें कुली की कुली रह जाती है। नूरी को यकीन नहीं आता कि फरहाद इस हालत को पहुंच चुका है। नूरा फरहाद के पास आकर कहता है फरहाद तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, आखिर तुम वापस क्यों नहीं आए। नूरी की बात सुनकर फरहाद वहाँ से जाने लगता है। फरहाद ऐसा रिएक्ट करता है जैसे पहले उसने नूरी को कभी देखा ही नहीं। इस पे नूरा फरहाद से कहता है बहू फरहाद तुम मुझे नहीं पहचान रहे। फरहाद उसकी तरफ देखकर कहता है मैं आपको नहीं जानता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, मैं नूरा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मुझे भी नहीं पहचानते, तुम मुझे कैसे भूल सकता है। फरहाद एक दफा फिर उसे कहता है मैं आपको नहीं जानता और फिर वहाँ से जाने लगता है। फरहाद जिसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी महबूब के सिवा किसी को भी पहचानता नहीं। दूसरी तरफ सिकंदर रोमाना के पास जाता है। रोमाना को परेशान देखकर सिकंदर कहता है आखिर तुम्हें वो किया जाता है। इस पे रोमाना कहती है मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ दिया, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। इस पे सिकंदर कहता है मैंने ऐसा क्या किया है, मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बहुत जल्द तुम्हें हवेली ले जाऊंगा। इस पे रोमाना कहती है मुझे नहीं लगता है कि तुम उस हवेली में मुझे वो इज्जत दिला पाओगे जो होना चाहिए।
दूसरी तरफ सजाद दिलावर को फोन करके उसे बताता है, सजाद तुम्हें पता है फरहाद जिंदा है। सजाद ये सुनकर उसकी खुशी कोई इंतहा नहीं होती और वो उसी वक्त मुल्तान आ जाता है। मुल्तान में उसे पता चल जाता है कि फरहाद एक दरबार में है। वो दरबार आकर फरहाद को ढूंढना शुरू कर देता है और सजाद जैसे ही फरहाद को दरगाह में देखता है वो फौरन फरहाद के पास आकर कहता है, पीदी तुमने अपने आप का क्या हाल बना दिया है। पीदी तुम कहाँ गई थी, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम्हारा कोई खबर नहीं। सब घर वाले तुम्हारे लिए परेशान हैं और अम्मी भी होश में नहीं है। तुम अभी के भी मेरे साथ वापस घर चलो। फरहाद बहुत गौर से सजाद की तरफ देखता है और पहचानने से भी इनकार कर देता है। तुम कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। इसमें सजाद कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ सजाद, आप पहचानने से कैसे इनकार कर सकती हो। फरहाद ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम अभी के भी मेरे साथ वापस घर चलो। आखिर तुमने अपना हाल क्या बना रखा है, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। फरहाद कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आपको नहीं जानता और फिर वहाँ से जाने लगता है। इसलिए सजाद भी बहुत परेशान है कि अब वो फरहाद को यहाँ से कैसे लेकर जाए। दूसरी तरफ फकीरा और माही दोनों दरगाह पर जाती है। फकीरा माही से कहती है, फरहाद तो मर चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वेहम है। इस पे माही कहती है, नहीं ये मेरा वेहम नहीं है, मैंने खुद उसे देखा है, फरहाद जिंदा है। ये सुनकर फकीरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और माही जैसे ही फरहाद को देखती है तो उसके पास आकर कहती है, फरहाद मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें आज दिलाने वाली मैं थी और दूसरी का हाथ भी मैंने बढ़ाया था। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगती है और फिर फरहाद माही से कहता है, इसी नाजुक दिल ले लोगा, सड्डा दिल ना यूं दुखाया कर, ना झूठी वादी करिया कर, ना झूठी कसमिया खाया कर, तेनों किन्नी वारी आ किया है, मैनू वलवल ना आजमाया कर, तेरी याद दे विच मैं मर जासा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। और माही फिर से फरहाद के आगे हाथ जोड़ लेती है, प्लीज फरहाद आप मुझे माफ कर दो, क्योंकि जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी से गए हो उस दिन से लेकर आज तक मैं एक एक लम्हा तुम्हारी याद में तड़पती रही हूँ। फरहाद के पास तो कुछ अल्फाज ही नहीं होती और उसके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि वो किस कदर सच्ची मोहब्बत माही से करता था, लेकिन माही ने उसकी मोहब्बत को चंद अल्फाज से टुकरा के रख दिया और उसकी मोहब्बत की जरा भी कदर नहीं की। उसके जज्बात किस कदर सच्ची थी। माही के जाने का वक्त हो जाता है, भाभी उसे लेकर चली जाती है और फरहाद भी इसी आस में है कि माही दोबारा आएगी और माही भी दोबारा मिलना चाहती है फरहाद से, क्योंकि माही को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक फरहाद उसे माफ नहीं करेगा। माही ये सब कुछ जान जाती है कि किस तरह नाजिर शाह फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है और यही बात माही से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि वो अब दोबारा फरहाद को खोना नहीं चाहती। माही को इस बात का एहसास है कि फरहाद को पहली दफा खोने के बाद उसने किस तरह की अजियतें सही, इसलिए वो अपने वालिदा से कहती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ लेती हूँ, आप भाई को समझा दे कि वो फरहाद को माफ कर दे। अगर फरहाद को इस दफा कुछ हो गया मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। और ये बात सच है कि फरहाद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और इस मोहब्बत की आस मैंने खुद उसे दिलाई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि फरहाद मेरी मोहब्बत में यहाँ तक आ जाएगा। इस पे माही की वालिदा कहती है, माही तुम फरहाद को भूल क्यों नहीं जाती, हालांकि तुम जानती भी हो उसकी बददुआ की वजह से तुम्हारी जिंदगी से खुशियों का खात्मा हो गया, फिर भी तुम फरहाद की जिंदगी के लिए दुआ कर रही हो। तुम अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हो, उसको जब एक दफा गुस्सा आता है फिर कम होने का नाम नहीं लेता। वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। रुमाना सिकंदर से कहती है, फरहाद दीवानों की तरह माही को चाहता है, वो उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर हमने फरहाद और माही की मदद ना की तो इसी तरह माही फरहाद की याद में तड़पती रहेगी। हमें इन दोनों के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस पे सिकंदर कहता है, फरहाद ने माही की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, मुझे यकीन नहीं आता वो पागलों की तरह माही से मोहब्बत करता है। उसने सिर्फ माही की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। वो माही थी जिसकी वजह से फरहाद ने अपनी ये हालत कर दी। दूसरी तरफ फरहाद जो आज भी माही की याद में तड़प रहा है, वो अभी तक माही को अपने दिल से नहीं निकाल पाया। आज भी वो माही की खातिर दर बदर भटक रहा है और उसे इस बात का यकीन है कि माही एक न एक दिन जरूर आएगी और एक न एक दिन उसे मेरी सच्ची मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। लेकिन फरहाद को भी पता नहीं कि वो जितनी मोहब्बत माही से करता है उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत माही फरहाद से करती है। और जब से माही को ये बात मालूम हुई है कि नाज़िर शाह फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो एक एक लम्हा फरहाद के लिए दुआ कर रही है, क्योंकि वो अब दोबारा फरहाद को खोना नहीं चाहती और हमासे में माही की खुद मदद करेगी। लेकिन सिर्फ नाज़िर शाह से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ तक कि वो माही का भी दुश्मन बन चुका है। रुमाना को पता चलता है कि सिकंदर माही से शादी कर रहा है। सिकंदर से मिलने के लिए रुमाना आ जाती है। रुमाना कहती है, सिकंदर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ दिया। सिकंदर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे, इस हवेली में मुझे लाओगे। तो इसमें सिकंदर कहता है, माही से शादी सिर्फ मेरी मजबूरी है और ये बात सच है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बहुत जल्द मैं अपने वादे पूरी करूंगा। दूसरी तरफ माही की वालिदा माही से कहती है, अगर तुम सिकंदर से शादी नहीं करना चाहती हो तो ना करो, तुम्हारे भाई और बाप को मैं मनाऊंगी। इस पे माही रोने लगती है और कहती है, अब उस घर में मैं वापस क्या करने के लिए जाऊंगी। इस पे माही की वालिदा कहती है, माही तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी तुम्हारी खेलने की दिन है, तुम अपनी जिंदगी से मायूस कैसे हो सकते हो। इस पे माही कहती है, नहीं अम्मी मैं इसी घर में रहूंगी।
इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे मासेन माही पर सख्तियाँ शुरू कर देती है और उसके साथ नौकर जैसे सलूक करती है। मासेन सिकंदर से कहती है इसकी सजा ये है कि वो तुमसे शादी कर ले, तुम्हारी बीवी बनकर रहे और अपने घर वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं रखेगी। सिकंदर मासेन को लाख समझाने की कोशिश करता है लेकिन अब मासेन कोई भी बात नहीं मानती। वो उसे रोमाना की भी बताने का कोशिश करता है लेकिन इस पे मासेन कहती है ऐसी बेहया लड़की को मैं अपना बहू नहीं बना सकती। दूसरी तरफ बाबा साई फरहाद से कहते हैं फरहाद तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो लेकिन इससे पहले तुम्हें अल्लाह को राजी करना होगा। और फिर बाबा साई फरहाद से कहते हैं प्यार में कभी बद्दुआ नहीं दी जाती, चाहे जो भी हालात हो, बस उसे सिर्फ दुआ ही दी जाती है और तुमने जिससे प्यार किया तुमने उसको बद्दुआ दी। इसलिए फरहाद को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने माही को बद्दुआ देकर गलत किया था। इसलिए वो अल्लाह ताला से माफी मांगता है और कहता है मैं अपनी बद्दुआ वापस लेता हूँ। दूसरी तरफ माही कमरे में अकेली बेटी रो रही होती है। सिकंदर उसके पास जाकर कहता है अम्मा से सिकंदर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, वो अभी भी उनके गम में है, इसलिए वो आपसे इस लहजे में बात करती है। आपको मासेन की बातों पर बुरा नहीं मानना चाहिए। इस पे माही कहती है आप मासेन को समझाती क्यों नहीं? अगर उन्होंने अपना बेटा खोया है, मैंने भी तो अपना शौहर खोया है, इस घर पर मेरा भी हक है। मासेन बार बार मुझे ऐसी बातें क्यों सुनाती है? सिकंदर कहता है मैं मासेन को समझाऊंगा, बस आप कुछ ही दिन इसे बर्दाश्त करे। दूसरी तरफ बाबा साई फरहाद से कहता है दुनिया की मोहब्बत आर्जी मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत इंसान को दुनिया का ही बनाकर रखती है। हकीकी मोहब्बत में दुनिया भी मिल जाती है और आखिरत भी, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ दिल का रोग इंसान को सिर्फ दर बदर के टोकरे ही देता है, इसके सिवा कुछ नहीं। फरहाद हैरान हो कि फकीर बाबा की तरफ देखता है। बाबा आप मुझे बताए मैं क्या करूँ? जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मेरा महबूब मेरी आंखों के सामने होता है। मैं भूलने की लाख कोशिश कर चुका हूँ लेकिन उसका चेहरा मेरी आंखों से उजल ही नहीं होता। फकीर बाबा फरहाद की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ जब नूरी को पता चलता है कि फरहाद जिंदा है, हवेली आकर नाजिम शाह को बताता है आपको पता है फरहाद जिंदा है। इस पे नाजिम शाह कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तमाम निशानियां फरहाद की थी, फरहाद तो मर चुका है ना। इस पे नूरा कहता है फरहाद मुल्तान में एक दरगाह पर देखा गया है, मैंने इस बात की पूरी तस्दीक किया है, फरहाद जिंदा है। इस पे नाजिम शाह कहता है तुम फौरन अपने बंदों को लेकर जाओ और फरहाद को यहाँ लेकर आओ। इस पे नूरा कहता है ठीक है आप जैसे कहता है मैं वैसा ही करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फरहाद वापस आएगा। इस पे नाजिम शाह कहता है वो क्यों नहीं आएगा, तुम जल्दी से जाकर उसे अपने साथ लेकर आओ। और फिर नूरा वहाँ से चला जाता है। जब से नूरी को पता चला है कि फरहाद जिंदा है, इस बात पर नूरा भी बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए वो दिलावरी को ढूंढना शुरू कर देता है और उसे यही बताना चाहता है कि फरहाद जिंदा है। दूसरी तरफ मासेन माही के साथ उसी दरगाह में जाती है। माही फरहाद को देखकर उसे यकीन नहीं आता कि फरहाद जिंदा है। माही फरहाद को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगती है, प्लीज आप खुदा के लिए यहाँ से चले जाए, मैं तुम्हें इसी अजियत में नहीं देख सकती। मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो मोहब्बत की दुश्मन है। फरहाद ये सुनकर माही से कहता है माही मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ याद नहीं, अगर याद है तो सिर्फ तुम्हारा नाम, इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं जानता। इस पे माही कहती है फरहाद तुम्हारी बद्दुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं खुद अजियत में हूँ, मैं मजीद तुम्हें ऐसी अजियत में नहीं देख सकती। दूसरी तरफ नूरा आखिरकार फरहाद के पास पहुंच ही जाता है। नूरा फरहाद को देखकर उसकी आंखें कुली की कुली रह जाती है। नूरी को यकीन नहीं आता कि फरहाद इस हालत को पहुंच चुका है। नूरा फरहाद के पास आकर कहता है फरहाद तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, आखिर तुम वापस क्यों नहीं आए? नूरी की बात सुनकर फरहाद वहाँ से जाने लगता है। फरहाद ऐसा रिएक्ट करता है जैसे पहले उसने नूरी को कभी देखा ही नहीं। इस पे नूरा फरहाद से कहता है बहू फरहाद तुम मुझे नहीं पहचान रहे। फरहाद उसकी तरफ देखकर कहता है मैं आपको नहीं जानता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, मैं नूरा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मुझे भी नहीं पहचानते, तुम मुझे कैसे भूल सकता है? फरहाद एक दफा फिर उसे कहता है मैं आपको नहीं जानता और फिर वहाँ से जाने लगता है। फरहाद जिसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी महबूब के सिवा किसी को भी पहचानता नहीं। दूसरी तरफ सिकंदर रोमाना के पास जाता है। रोमाना को परेशान देखकर सिकंदर कहता है आखिर तुम्हें वो किया जाता है? इस पे रोमाना कहती है मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ दिया, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस पे सिकंदर कहता है मैंने ऐसा क्या किया है, मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बहुत जल्द तुम्हें हवेली ले जाऊंगा। इस पे रोमाना कहती है मुझे नहीं लगता है कि तुम उस हवेली में मुझे वो इज्जत दिला पाओगे जो होना चाहिए। दूसरी तरफ सजाद दिलावर को फोन करके उसे बताता है सजाद तुम्हें पता है फरहाद जिंदा है। सजाद ये सुनकर उसकी खुशी कोई इंतहा नहीं होती और वो उसी वक्त मुल्तान आ जाता है। मुल्तान में उसे पता चल जाता है कि फरहाद एक दरबार में है। वो दरबार आकर फरहाद को ढूंढना शुरू कर देता है और सजाद जैसे ही फरहाद को दरगाह में देखता है वो फौरन फरहाद के पास आकर कहता है पीदी तुमने अपने आप का क्या हाल बना दिया है, पीदी तुम कहाँ गई थी, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम्हारा कोई खबर नहीं, सब घर वाले तुम्हारे लिए परेशान हैं और अम्मी भी होश में नहीं है, तुम अभी के भी मेरे साथ वापस घर चलो। फरहाद बहुत गौर से सजाद की तरफ देखता है और पहचानने से भी इनकार कर देता है, तुम कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। इसमें सजाद कहता है आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ सजाद, आप पहचानने से कैसे इनकार कर सकती हो?
फरहाद ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम अभी के अभी मेरे साथ वापस घर चलो। आखिर तुमने अपना हाल क्या बना रखा है? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? फरहाद कहता है मुझे माफ कर दो, मैं आपको नहीं जानता, और फिर वहाँ से जाने लगता है। इसलिए सजाद भी बहुत परेशान है कि अब वो फरहाद को यहाँ से कैसे लेकर जाए। दूसरी तरफ फकीरा और माही दोनों दरगाह पर जाती है। फकीरा माही से कहती है फरहाद तो मर चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वेहम है। इस पे माही कहती है नहीं, ये मेरा वेहम नहीं है, मैंने खुद उसे देखा है, फरहाद जिंदा है। ये सुनकर फकीरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और माही जैसे ही फरहाद को देखती है तो उसके पास आकर कहती है फरहाद मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें आज दिलाने वाली मैं थी और दूसरी का हाथ भी मैंने बढ़ाया था। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगती है और फिर फरहाद माही से कहता है इसी नाजुक दिल ले लोगा, सड्डा दिल ना यूं दुखाया कर, ना झूठी वादी करिया कर, ना झूठी कसमिया खाया कर, तेनों किन्नी वारी आ किया है, मैनू वलवल ना आजमाया कर, तेरी याद दे विच मैं मर जासा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। और माही फिर से फरहाद के आगे हाथ जोड़ लेती है, प्लीज फरहाद आप मुझे माफ कर दो, क्योंकि जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी से गए हो उस दिन से लेकर आज तक मैं एक एक लम्हा तुम्हारी याद में तड़पती रही हूँ। फरहाद के पास तो कुछ अल्फाज ही नहीं होती और उसके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि वो किस कदर सच्ची मोहब्बत माही से करता था, लेकिन माही ने उसकी मोहब्बत को चंद अल्फाज से टुकरा के रख दिया और उसकी मोहब्बत की जरा भी कदर नहीं की। उसके जज्बात किस कदर सच्ची थी। माही के जाने का वक्त हो जाता है, भाभी उसे लेकर चली जाती है और फरहाद भी इसी आस में है कि माही दोबारा आएगी और माही भी दोबारा मिलना चाहती है फरहाद से, क्योंकि माही को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक फरहाद उसे माफ नहीं करेगा। माही ये सब कुछ जान जाती है कि किस तरह नाज़िर शाह फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है और यही बात माही से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि वो अब दोबारा फरहाद को खोना नहीं चाहती। माही को इस बात का एहसास है कि फरहाद को पहली दफा खोने के बाद उसने किस तरह की अजियतें सही, इसलिए वो अपने वालिदा से कहती है मैं आपके आगे हाथ जोड़ लेती हूँ, आप भाई को समझा दे कि वो फरहाद को माफ कर दे। अगर फरहाद को इस दफा कुछ हो गया मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। और ये बात सच है कि फरहाद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और इस मोहब्बत की आस मैंने खुद उसे दिलाई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि फरहाद मेरी मोहब्बत में यहाँ तक आ जाएगा। इस पे माही की वालिदा कहती है माही तुम फरहाद को भूल क्यों नहीं जाती, हालांकि तुम जानती भी हो उसकी बददुआ की वजह तुम्हारी जिंदगी से खुशियों का खात्मा हो गया, फिर भी तुम फरहाद की जिंदगी के लिए दुआ कर रही हो। तुम अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हो, उसको जब एक दफा गुस्सा आता है फिर कम होने का नाम नहीं लेता। वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। रुमाना सिकंदर से कहती है फरहाद दीवानों की तरह माही को चाहता है, वो उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर हमने फरहाद और माही की मदद ना की तो इसी तरह माही फरहाद की याद में तड़पती रहेगी। हमें इन दोनों के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस पे सिकंदर कहता है फरहाद ने माही की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, मुझे यकीन नहीं आता वो पागलों की तरह माही से मोहब्बत करता है। उसने सिर्फ माही की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। वो माही थी जिसकी वजह से फरहाद ने अपनी ये हालत कर दी। दूसरी तरफ फरहाद जो आज भी माही की याद में तड़प रहा है, वो अभी तक माही को अपने दिल से नहीं निकाल पाया। आज भी वो माही की खातिर दर बदर भटक रहा है और उसे इस बात का यकीन है कि माही एक न एक दिन जरूर आएगी और एक न एक दिन उसे मेरी सच्ची मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। लेकिन फरहाद को भी पता नहीं कि वो जितनी मोहब्बत माही से करता है उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत माही फरहाद से करती है। और जब से माही को ये बात मालूम हुई है कि नाज़िर शाह फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो एक एक लम्हा फरहाद के लिए दुआ कर रही है, क्योंकि वो अब दोबारा फरहाद को खोना नहीं चाहती और हमासे में माही की खुद मदद करेगी। लेकिन सिर्फ नाज़िर शाह से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ तक कि वो माही का भी दुश्मन बन चुका है। रुमाना को पता चलता है कि सिकंदर माही से शादी कर रहा है। सिकंदर से मिलने के लिए रुमाना आ जाती है। रुमाना कहती है सिकंदर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ दिया। सिकंदर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे, इस हवेली में मुझे लाओगे। जिसमें सिकंदर कहता है माही से शादी सिर्फ मेरी मजबूरी है और ये बात सच है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बहुत जल्द मैं अपने वादे पूरी करूंगा। दूसरी तरफ माही की वालिदा माही से कहती है अगर तुम सिकंदर से शादी नहीं करना चाहती हो तो ना करो, तुम्हारे भाई और बाप को मैं मनाऊंगी। इस पे माही रोने लगती है और कहती है अब उस घर में मैं वापस क्या करने के लिए जाऊंगी। इस पे माही की वालिदा कहती है माही तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी तुम्हारी खेलने के दिन है, तुम अपनी जिंदगी से मायूस कैसे हो सकते हो। इस पे माही कहती है नहीं अम्मी मैं इसी घर में रहूंगी।